So very good morning. In yesterday's class, we had discussed about what parliament is and how it came into existence, right? क्या reasons थे जो ये parliament की है या parliament जैसे institution की जरूरत हमारी country को महसूस हुई? We had already done that at the time of Britishers, right? During that time, the people were very afraid of this government or of these Britishers. They could not speak against them, they could not criticize them. Whatever decision was imposed on the people, they were bound to follow that. अपना इनका कोई डिसीजन नहीं था लोगों का, वो कहीं गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन दे दिया उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे. एंड आई मीन दे वर नॉट हैविंग एनी से इन द गवर्नमेंट आल्सो, राइट? गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, लोगों का अपना कोई से नहीं था. डिसीजन दे दिया, लॉ बन गया, लोगों ने उसको फॉलो कर लिया. And it continued till the national movement had started. Once the national movement had started, then this feeling of nationalism, the feeling of equality और freedom, ये सारी जो चीजें थी इस टाइप की, ये लोगों में आने लगी कि yes we need to get freedom from these Britishers. और ऐसी और feelings जो थी वो लोगों में आई. And they now came to know that they can also criticize the government because they were having very good leaders with them who led them to this extent that these people now could resist, they could protest, right? तो ये उस समय लीडर्स ने भी इस चीज को महसूस किया कि लोग जो हैं उनके पास इतना राइट तो होना चाहिए कि if the government or if the leaders are doing something wrong, so at least these people can criticize them, they can ask a question, they can raise a question, they can protest, they can resist, right? तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1949 में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, तो उस टाइम भी जो लीडर्स थे, they wanted to have such an arrangement in the country where the people are responsible for the formation of the government, right? And once the government is elected or is formed, then the government is answerable to the people. तो अब अगर एक हम फॉर्मल सा एक डिफाइन करें इसको, तो अभी भी जो द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज देयर इन अ कंट्री, दैट इज द डेमोक्रेसी. इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल. हाँ, ये अलग बात है कि इसको मानते कितना है या कितना ये प्रैक्टिकली और प्रैक्टिकल ग्राउंड कितना सही है, ये बातें अलग हैं. दैट्स ऑलवेज अ डिबेटेबल क्वेश्चन. But yes, formal definition ये है कि it's of the people, for the people, by the people. It means कि the entire government, entire democracy, entire political system, it is revolving around us, we people. We people means वो जो वोट करते हैं हम, like we are 18 years and above, जो भी 18 years and above है, he has a right to vote. तो जितना ये पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे आसपास से रिवॉल्व करता है, हम इन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स in turn they make the laws for us, and the place where they sit together, they have their meetings, they decide the fate of the country, वो जगह है पार्लियामेंट. ये सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं है, it's an institution, right? ये पूरा सिस्टम है. हमारी कंट्री चलती ही पार्लियामेंट पे, वहां पे जो भी होता है उस हिसाब से हमारी पूरी कंट्री जो है वो रन करती है. It means that a parliament, it is very important organization in our country. यहाँ पे जो सिस्टम बन गया है वो हमारी पूरी कंट्री को एडमिनिस्टर करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, उसको रूल करेगा. So when the constitution was made, उस टाइम पे ही कुछ ऐसी you can say कुछ ऐसे रूल्स और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इशू कर दिए गए थे गवर्नमेंट के लिए कि that the government once elected has to work according to these directive principles, which stated that the government is responsible to the people. और ये सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स जो थे, they had ruled for such a long time. The people had already faced so many things at that time. तो अब जो हमारे लीडर्स है वो चाहते थे कि अब जो गवर्नमेंट बने तो लोग एटलीस्ट वो चीजें फेस ना करें that they had faced along back at the time of
ब्रिटिशर्स, राइट? तभी इतना एक जो सोफिस्टिकेटेड और एक you can say ना एक the organization which is there in the favor of the people that had been created, right? So this was the reason why this parliament was created. Now once it is created, इसका काम क्या है? हमने तो अपने लोग चुन दिए, हमने तो इलेक्शंस हुए, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लिए. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट? वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका क्या काम है? हाउ दे रन द कंट्री, राइट? दैट वी विल टॉक अबाउट नाउ. So yesterday I have shown you this picture. Parliament House है ये. It is there in New Delhi. और इसमें भी it is 2 houses are there. Right? One is the Lok Sabha, one is the Rajya Sabha. मैं picture wise आपको explain करती हूँ. ये जो parliament है इसे हिंदी में हम कहते हैं संसद. Right? It is the supreme law making institution. हमारी country में जितने भी laws बनते हैं that are made here in this parliament. इस पार्लियामेंट के अंदर काफी सारे ऐसे हॉल्स हैं जहां पर पूरी एक तो हमारी सेक्रेटरिएट है, हमारा यू कैन से कि जितना हमारी पूरी कंट्री जो है यहीं पे यहीं से चलती है. ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो हमारी पूरी कंट्री को चला रही है. इट हैज 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. इसमें फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द राज्यसभा. ऑल्दो वी नो कि लोकसभा इज मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि हम लोग वी पीपल डायरेक्टली इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ लोकसभा. यहाँ जहां ग्रीन कारपेट है, राइट? यहाँ पे हम लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको डायरेक्टली चुनते हैं. राज्यसभा के मेंबर्स चुनने में हमारा रोल नहीं होता है. हमारा मीन्स द कॉमन पीपल, राइट? एंड हियर we'll talk about the Rajya Sabha first. It is known as a Council of States. इसे Council of States क्यों कहा जाता है? Because the members of the legislative assemblies of different states, they elect the members of Rajya Sabha. Right? The members of legislative assemblies of different states, of all the states, they elect the members of Rajya Sabha. इसे इसलिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज अ अपर हाउस. इसे अपर हाउस भी कहा जाता है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ राज्यसभा. इट्स टोटल स्ट्रेंथ इज 245 मेंबर्स. और इसका स्पीकर जो होता है, ही इज ऑलवेज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? एंड द थर्ड पिक्चर, दिस इज द ग्रीन कार्पेट वन. इट इज अ लोकसभा, राइट? एंड यहाँ हम लोग राज्यसभा की जब बात कर रहे हैं तो व्हेन एज आई सेड कि दिस इज चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर वेंकैया नायडू, राइट? सो यहाँ पर इफ यू विल सी इन these two pictures, you will not find any much difference between these two pictures. Almost same है दोनों का इंटीरियर. डिफरेंस एक तो कार्पेट्स में रखा गया क्योंकि रेड कार्पेट और ग्रीन कार्पेट. रेड कार्पेट इट सिंबलाइज something that is at a higher level, right? ये जो रेड कार्पेट्स होते हैं ना, ये नॉर्मली सिंबलाइज करते हैं एक हायर लेवल को. और ग्रीन carpets comparatively a lower level. Comparatively, again I'm using the word comparatively, comparative to Rajya Sabha, right? Then third one, as I said, it is a Lok Sabha. It is also known as a House of the People. Why it is known as the House of the People? Because the people elect the members of Lok Sabha. We people, हम लोग जो हैं वो लोक सभा के मेंबर्स को चुनते हैं, राइट? इसकी मेंबरशिप कितनी है? 545. एंड हर स्टेट के अलग अलग यू कैन से द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसके उतने ही ज्यादा मेंबर्स जो है वो लोकसभा के मेंबर्स होंगे, राइट? रीजन ये है कि शुरू से ही एक ये बड़ा एक सिस्टम फॉलो किया गया है, right? Where ki over a particular number of people, one representative is to be there. Over a particular number of people, one representative is to be there, right?
से मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज हम लोग आपकी क्लास में एक सिस्टम बना देते हैं कि हर 10 स्टूडेंट्स के ऊपर एक मॉनिटर होगा, राइट? अब आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं से 30, राइट? अब क्लास 9th है, उसमें से आप स्टूडेंट्स हैं करीब 50, राइट? तो इस के हिसाब से आपकी क्लास से बनेंगे 3 मॉनिटर्स और उस क्लास से बनेंगे 5 मॉनिटर्स, बट ऑब्वियसली एक फिक्स नंबर रखा हुआ है कि इतने स्टूडेंट्स के ऊपर एक मॉनिटर चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि ऑन अ फिक्स नंबर ऑफ people one representative is to be there, so more the population, more the members from that state is। अब पंजाब से लोकसभा में 13 मेंबर्स चुने जाते हैं, राइट? और यही उत्तर प्रदेश से अराउंड 80 चुने जाते हैं। भाई बिकॉज पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा, यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पंजाब की पॉपुलेशन कंपैरेटिव टू दैट स्टेट इट इज वेरी लेस, राइट? लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं। When you will go in class 9th, you will come to know that the Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha, पर फिर भी लोकसभा को कह देते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस, whereas the powers are more there with Lok Sabha and Rajya Sabha is having very very nominal powers, right? शायद रीजन ये है कि राज्यसभा जो है उसको वो लोग चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को, जिन्हें हम चुनते हैं, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक अपर लेवल हो जाता है। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस एंड द लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस, right? Now we need to move with what is the role of the parliament, right? पार्लियामेंट क्यों बनी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या रीजन है। नाउ व्हाट इज द वर्किंग ऑफ और द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। वी नो इट वाज क्रिएटेड आफ्टर 1947, राइट? 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम था वो शुरू हो चुका था, राइट? सो अब जब ये इंडियन पार्लियामेंट का सिस्टम बनाने का सोचा गया, तो यहाँ पर मेन कंसर्न क्या रखा गया, दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज टू बी देयर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो कंसेंट से बनाई जाएगी लोगों की, अपने आप ही कोई भी ऐसा नहीं होगा कि द पावरफुल इज मेकिंग द गवर्नमेंट एंड द वीकर इज इग्नोर्ड हियर। सो द पार्लियामेंट सिस्टम जो हमारी कंट्री में काम करता है, नो डाउट इट इज हैविंग इमेंस पावर्स, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट ऑब्वियस एक पूरी कंट्री को चला रहा है पार्लियामेंट, तो फिर पावर्स तो होंगी ही, बट ये पावर्स जो है ये भी लोगों ने ही दी होती हैं। और ये लोग जो मेंबर्स पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, जिन्हें हम एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, दे आर जस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वी पीपल, बट दे आर रूलिंग द एंटायर कंट्री। यहाँ पर आपको मैं दो एब्रिविएशंस बता देती हूँ, आप लोग सुनते जरूर होंगे पर आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं। ये जो पार्लियामेंट है ये दिल्ली में है, राइट? जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, उन्हें हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? एक होता है स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम कहते हैं एमएलए, राइट? और जो नेशनल लेवल पे हमारी कंट्री का लीडर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता वैसे प्रेसिडेंट है, बट उसके पास नॉमिनल पावर्स होती हैं, एक्चुअल में तो प्राइम मिनिस्टर ही रूल कर रहा होता है। और स्टेट लेवल पे होता है द चीफ मिनिस्टर, राइट? आपको मैं आपके स्कूल के एग्जांपल से समझा देती हूँ कि योर स्कूल इज देयर, राइट? आप लोगों के स्कूल में क्या होता है, एक काउंसिल होती है, ठीक है? स्टूडेंट काउंसिल होती है। व्हाट दैट स्टूडेंट काउंसिल इज, जिसमें डिसिप्लिन जैसे मॉनिटर्स होते हैं, उस ढंग से यहाँ पर भी हेड्स बना दिए जाते हैं, डिसिप्लिन इंचार्ज, स्पोर्ट्स इंचार्ज, को करिकुलर एक्टिविटी इंचार्ज, राइट? हेड बॉय, हेड गर्ल, ये सब होते हैं जो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, राइट? एंड दे हैव देयर हेड एज मैम प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, राइट?
और ये जो स्टूडेंट काउंसिल होती है ये आपके पूरे स्कूल को देखती है। आपके पूरे स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कैसी हैं वो स्पोर्ट्स इंचार्ज देखेगा। पूरे स्कूल का डिसिप्लिन जो है वो डिसिप्लिन इंचार्ज के पास उसका चार्ज होगा, राइट। पूरे स्कूल में जो एक्टिविटीज करवानी है दैट विल बी देयर विद द एक्टिविटी इंचार्ज, राइट। सो ये स्टूडेंट काउंसिल अलोंग विद मैम प्रिंसिपल ये पूरे कंट्री को देखते हैं, सॉरी पूरे आपके स्कूल को देखते हैं, राइट, स्कूल एज अ होल। वेयर एज उसके बाद आपकी डिवाइड की गई है क्लासेस, राइट। अब उन क्लासेस में क्या होता है, आपके क्लास टीचर बना देते हैं मॉनिटर्स, discipline monitor, notebook collection monitor, electricity monitor, then is your lunch monitor, right। कितने सारे मॉनिटर्स आपकी क्लास में बन जाते हैं, यूनिफॉर्म मॉनिटर। ये जो मॉनिटर्स बनते हैं आपकी क्लास में, क्या ये किसी और क्लास में जाके भी लोग बच्चों को डरा सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं? नो, ये आपकी क्लास को देखेंगे। यहां पर आपकी क्लास में हेड होगा आपका क्लास टीचर, राइट। सो ये क्या हुआ, जो स्टूडेंट काउंसिल थी जिसे विच वाज वर्किंग अकॉर्डिंग टू मैम प्रिंसिपल देयर, अंडर मैम प्रिंसिपल देयर, उसे हम क्या कहेंगे, पार्लियामेंट, राइट। पूरी कंट्री को देख रहे हैं वो। आपकी क्लास क्या होगी, स्टेट होगी, या जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एमएलए चुने गए हैं। जो आपके क्लास के मॉनिटर्स हैं वो एमएलए हैं, वो सिर्फ आपकी क्लास को देखेंगे। कंट्री को देखने के लिए हमारे पास अलग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ऐसा ही होता है, जो पूरी कंट्री को देखते हैं वो है हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एंड दोज हु आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ और हु आर रनिंग द स्टेट, दे आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो अगर आपके स्कूल का एग्जांपल देखा जाए तो जो आपके काउंसिल ऑफ आई मीन स्टूडेंट काउंसिल के जो बच्चे हैं वो हो जाएंगे एमपी, मैम प्रिंसिपल विल बी द प्राइम मिनिस्टर। और आपकी क्लास का अगर देखा जाएगा तो आपकी क्लास की जो मॉनिटर्स हैं दे विल बी द एमएलएस और द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड योर क्लास टीचर विल बी द चीफ मिनिस्टर, राइट। जैसे पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर में, स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में हम इसे कहते हैं विधानसभा। जैसे पार्लियामेंट को हम हिंदी में संसद कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम कहते हैं विधानसभा, राइट। सो ये जो पार्लियामेंट है इसका सिस्टम बड़ा ही सिंपल सा है। यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, दीज आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। वी विल टॉक मोर अबाउट द लोकसभा हियर। इट इज यूजुअली इलेक्टेड वंस आफ्टर एवरी 5 years। हाँ, बीच में कोई इमरजेंसी हो जाए तो लोकसभा जो है वो डिसॉल्व की जा सकती है, बट एज अ होल की जो रूल है वो एवरी 5 years इलेक्शंस होते हैं। Country is divided into numerous constituencies, right। अब constituencies क्या है, पूरी कंट्री को, जैसे मैंने बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन और वॉट एवर द रूल हैज बीन मेड कि इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल के अंडर एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो वो जो नंबर ऑफ पीपल जो है उसे डिवाइड कर दिया जाता है, उसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज कह दिया जाता है। या आप कह सकते हैं कि इलेक्शंस के हिसाब से पूरी कंट्री को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दोज पार्ट्स आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो लोकसभा के हिसाब से द कंट्री इज डिवाइडेड इन 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन जो है वो इलेक्ट होगा टू द पार्लियामेंट, राइट। And the candidates who contest the elections belong to different political parties। अब अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से कितने सारे लोग जो है वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, राइट। कितने लोग मीन्स कितनी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है वहां पर खड़े हो सकते हैं, और लेकिन उस एरिया से एक ही इलेक्ट होता है, राइट। अब ये आपके कुछ एक रिजल्ट सा दिया हुआ है कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारी कंट्री में पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शंस में। मेजर जो आपने सुनी हुई है दैट इज द भारतीय जनता पार्टी, दैट इज बीजेपी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। दीज आर द मेजर, यू कैन से बहुत बड़ी पार्टीज हैं हमारी कंट्री की। अब ये अगर मई 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, उसका रिजल्ट है भारतीय जनता पार्टी हैज क्लियरली वन द इलेक्शंस बाय 303 सीट्स, राइट। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना इसे हम सीट्स भी कह देते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऑल ओवर मिली थी 52 सीट्स ऑल ओवर इंडिया। एनी हाउ हम लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा डिबेटेबल सा हो जाएगा।
right? So once these are elected, ये जितने members of parliament एक बार अगर elect हो जाते हैं, they become the members of parliament और MPs, और ये सारे MPs जो हैं ये ही मिलकर parliament बनाते हैं, right? And once elections have taken place, parliament needs to perform the functions. एक बार जब elections हो जाते हैं तो उसके बाद ये कुछ functions हैं which are to be performed by the parliament. वो क्या functions हैं? We will see. To select the national government, ये आज को आपको मैं करवा देती हूँ कि अब जब एक बार elections हो गए हैं तो हमारी पार्लियामेंट जो है सबसे पहले क्या काम करेगी? पहले तो गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट अपने आप नहीं बन जाती है, उसके लिए भी कुछ you can say criteria होता है, that the political party who has got the maximum votes, the political party which has got the maximum votes, the leader of that party will be invited by the president to make the government. In case किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, राइट, अदरवाइज तो क्या होगा? मेजॉरिटी हम किसे कहते हैं? 545 मेंबर्स हैं, उसमें से 2/3 ऑफ मेजॉरिटी इज टू बी देयर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, 545 है तो 2/3 ऑफ से की अराउंड 350, राइट? इतनी मेजॉरिटी जो है, इतने मेंबर्स जो है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के होने चाहिए, या उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। देन ओनली दे विल बी एबल टू contest form the government. So हमारी कंट्री डिवाइडेड है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 543 मेंबर्स हैं, बट सॉरी टोटल मेंबर्स हैं हमारे 545, इलेक्टेड हैं 543। 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो नॉमिनेट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, राइट? प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 2 मेंबर्स इन द लोकसभा, और ये जो मेंबर्स होते हैं ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं, राइट? और ये दो लोग कौन से होते हैं? दीज आर द एंग्लो इंडियंस, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर सेटल हो गए, उनकी जो फर्दर आप कह सकते हो डिसेंडेंट्स जो हैं, राइट, उनके लिए 2 सीट्स जो है वो नॉमिनेट की हुई है। रेस्ट ऑफ द फंक्शंस वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास।